जी का वाहिगुरू जी का खालसा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ SGPC ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇਹ ਤੇ ਤਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਪੰਜ ਤੱਤ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਸੰਗਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਫਰਦਰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਰਾਜਾ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਨਾ ਨਾ ਭਾਨ, ਦੇਵਾ ਨਾ ਦੇਵ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਹਜ ਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਆ। ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 35 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 35 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ
मिलाप दे नाल बनिया होया है। ते पंज तत्व सब तो पहला विचारना है किहड़े किहड़े ने। गुरबाणी दी होंद नूं पंज तत्तां पंज भूतक सुमेल तत्तां दा सुमेल गिणदी है। धरती, पानी, हवा, आकाश अते अग्नि, ये पंजां तत्तां दा सुमेल पंच तत्त का रचन रचाना। साहिब गुरबाणी दे अंदर वचन करदे ने कि पंजां तत्तां दे द्वारा ही ये जिहड़ा शरीर रचिया होया है, शरीर बनाया होया है। पंच तत्त मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। प्रभु परमात्मा ने पंजां तत्तां दी एक काया बनाई है ते उस काया दे विच परमात्मा ने यह हीरे जवाहरातां दे रूपी गुण स्वरूप साडे जीवन दे विच देना कीते ने। परमात्मा ने इस शरीर दे अंदर देही दे अंदर ये पंज तत्त देना कीते ने। डॉक्टर श्री गुरबख्श सिंह केशरी ने अपनी जो किताब उन्हां दा कोश है संख्या कोश, उस दे अंदर जिक्र करते ने पंजां तत्तां नूं होर विस्तार दे नाल। पृथ्वी दे जो पंज गुण दिते ने वो हड्ड, मास, नख, त्वचा, रोम जिक्र किया है। जल दे जिहड़े गुण ने वो वीरज, लहू, मिज, मल, मूत्र और तीसरा अग्नि दे नींद, भुख, प्यास, पसीना, आलस। पवन दे गुण दसे ने धारण करना या फड़ना, चलाना या धकेलना, फैंकना, समेटना, फैलाउणा। अते आकाश दे गुण काम, क्रोध, लज्जा, मोह, लोभ आदि। ये तत्त शब्द रूप विच भूत भी वरतिया गया है। पंज भूतक शरीर प्रचलित तौर दे उत्ते गुरबाणी दे अंदर जिवें 10वें पातशाह दे पावन पवित्र बचन असीं जाप साहिब पढ़दे हां ना, ते उहदे विच भी आउंदा है नमस्तन अभूते। प्रभु परमात्मा ने ये पंजां तत्तां दे द्वारा ये शरीर बनाया होया है। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत्त रच जोत निवाजिया। पंजां तत्तां दे नाल रचना करके परमात्मा ने इस दे विच जोत रख के परमात्मा ने निवाजिया है। हुण असीं जाप आनंद साहिब जी की बाणी जो रोजाना पढ़ते हैं तो साहिब आखते ने कि ये शरीर मेरेया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आया। परमात्मा ने जोत साडी इस देही दे अंदर पंज भूतक देही दे अंदर रखी है ते असीं तां संसार दे विच आए हां। ते साहिब बचन ने पांच तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जिह ते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे भी पावन पवित्र ये बचनां दे राहीं स्पष्ट करते हैं कि पंजां तत्तां दे द्वारा ही ये शरीर बनिया होया है ते परमात्मा अपने पंजां तत्तां दे विच ही समा लैंदा है। भाव के इत्थे ही समाप्त जदों संसार नूं असीं छड्ड के जाना है, जीव आत्मा परमात्मा दे विच विलीन हो जाती है। शरीर वो चाहे अग्नि दाह संस्कार हो जावे, चाहे उसनूं पानी दे विच सुट दिता जावे, चाहे जमीन दे अंदर दफना दिता जावे, वो पंजां तत्तां दे विच ही सुमेल हो जाती है। ते साहिब गुरबाणी च वचन करते ने पौण पानी आकाश घर मंदिर हर बनी, हर विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी। साहिब कहते ने कि प्रभु परमात्मा ने ते पौण पानी धरती आकाश दा ये शरीर रूपी जिहड़ा घर बनाया होया है, मंदिर बनाया होया आ, इस मंदिर दे विच वरतै नानक आप झूठा कहो क्या गनी। अते परमात्मा इस देही दे विच आप वरतदा पिया, झूठा किसनूं आखदे पे हैं? झूठ ते कुछ है ही नहीं है। जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रै मिल जगत उपाया। प्रभु परमात्मा ने धरती जल तरंग अग्नि पवन पानी ये सारे जिवें सृष्टि की रचना की है उसी तरीके दे नाल ही साडी देही की भी रचना परमात्मा ने की है। पंच तत्व विस्तार प्रभु परमात्मा ने पंजां तत्तां दे द्वारा ही इस धरती का विस्तार किया होया है। इस शरीर दे अंदर वो अवस्था किसी किस्म की कोई रचना नहीं है, ना कोई आकाश। परमात्मा ने सृष्टि रचना तो पहला इस धरती के उत्ते ना कोई आकाश से, ना कोई धरती से, ना पौन, ना पानी, ना चंद, ना सूरज, जीव जंतु वनस्पति कुछ भी नहीं सी। प्रभु परमात्मा ने अपने हुक्म दे नाल ही
प्रभु परमात्मा ने पंजां तत्तां नूं बनाउणा कीता, सृष्टि दे अंदर सिरजना कीती, माता पिता दे संबंध बनाए, आप ही परमात्मा ने सारी घाड़त घड़ी, माता दे गर्भ दे अंदर परमात्मा ने आप ही विच वर्त करके सारे कारज करके साडे शरीर नूं आप ही परमात्मा ने बनाउणा कीता। भाई गुरदास जी अनुसार पंज तत्तां नाल पंजी गुणां दी गल वो आप स्पष्ट करते ने, अते विरोधी भी हन, मिला के विरोधी तत्त मिला के परमात्मा ने शरीर की रचना की। देखो जेकर असीं विचारते हैं ना, जेकर पानी है, जिथे पानी है उथे अग नहीं है, जिथे अग है उथे हवा नहीं होएगी। पर विरोधी तत्तां नूं भी परमात्मा ने इथे इकट्ठे करके भाव के इस देही दे अंदर पंज भूतक पंजे तत्त परमात्मा ने सृष्टि के अंदर सृजन करके मनुखा देही दी है। सब कहते रगत बिंद की देह रच, पंच तत्त की जड़त जनाई, पौन पानी बै संतरो, चौथी धरती संग मिलाई, पंच विच आकाश कर करता छटम आदिष्ट समाई। पंजा तत्तां नूं बना करके इस देही की गल करदे होया कि छेवां प्रभु परमात्मा आप करता छटम दृष्ट समाई, छेवां करता पुरख प्रभु परमात्मा आण के साडे देह दे अंदर आप समा गया। पंच तत्त 25 गुण 70 मित्र मिल देह बनाई। पंज गुण ने ते 25 गुण ने जिन्होंने असीं प्रकृतियां बोलते हैं, प्रकृतियां मिला के 70 मित्र भाव के कई गुण एक दूजे के बिल्कुल विरोधी ने, लेकिन परमात्मा ने विरोधी नहीं रहन देते। परमात्मा ने विरोधी तत्व भी इकट्ठे करके साडी देही दे अंदर पा देना कीते ने। देखो जेकर बीपी वधदा आ तां भी प्रॉब्लम हुंदी है, जेकर घटदा आ तां भी प्रॉब्लम हुंदी है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंजे विकार जेकर वधदे ने तां भी दिक्कत दिंदे आ, जेकर घटदे ने तां भी दिक्कत दिंदे आ। हुण एक बन्ने तापमान साडा जो कि 94.4 डिग्री दे उत्ते रहिंदा आ, ते फिर जाके साडा यानी कि बुखार नॉर्मल साडा शरीर दी देही है, पर इहदे विच तापमान भी जरूरी है। जे तापमान वध जांदा आ ते उहदे वास्ते सानू बुखार चढ़ जांदा है जां होर दुख तकलीफां आ जांदियां। जेकर घटदा है तापमान तां भी सानू दिक्कत हुंदी है, जे वध जांदा है तां भी दिक्कत हुंदी है। भाव कि परमात्मा ने जिहड़े साडे दुश्मन ते मित्र सारे इकट्ठे करके साडे देही दे विच पा देना कीते आ। भाई गुरदास जी ये गल पूर्ण तौर दे उत्ते स्पष्ट करदे होए अपने बचनां दे अंदर ये सानू दसना कीते आ। वारां अंदर ये गल स्पष्ट कीती हुई है कि पिता दी बिंद ते माता दा खून मिला के पंजां तत्तां दी सिरजना इस देही दे अंदर माता दे गर्भ दे अंदर अग्नि दे विच ताप दे विच देही दे विच प्रभु परमात्मा ने साडी देही दी सिरजना कीती। इहदे विच हुण जिहड़ी गल आउंदी है विरोधी सुभाव वालियां जिन्हां दे विच देह दी सिरजना कीती है, और साडी जिहड़ी सिरजना दी गल आउंदी है, सृष्टि दी सिरजना दी गल आउंदी है, गुरमत दे अनुसार 4 प्रकार दी सृष्टि दी सिरजना दी गल आउंदी है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज, इन्हां 4 खाणियां दी गल आखदे आ। अंडज वो जीव जिहड़े आंडियां दे द्वारा पैदा हुंदे ने, जेरज जिहड़े जेर दे द्वारा पैदा हुंदे ने, सेतज सेतज तो भाव जिहड़ा पसीने दे द्वारा पैदा हुंदे ने, उत्पज उत्पज भाव जिहड़े अपने आप जिहड़े जमीन तो जिहड़ियां वनस्पति जमीन तो पैदा हो रही है उसनूं गुरमत दे अनुसार जां कोशां दे अनुसार उत्पज आखे जांदा है। पसीने दे द्वारा सेतज तो भाव पसीना जिवें जूआं इत्यादिक जां जानवरां नूं चिचड़ियां इत्यादि पए उन्हां नूं ਉਹ सेतज पसीने दे द्वारा हुंदे ने। जिहड़े जेरज जिवें मनुख है जां पशु हैं उन्हां दे जिहड़े बच्चे ने ਉਹ सेतज दे द्वारा जेरज दे द्वारा पैदा हुंदे ने। आंडियां जे जो पंछियां दे जो बच्चे पैदा हुंदे ने ਉਹ आंडियां दे द्वारा पैदा हुंदे ने। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्पष्ट तौर दे उत्ते गुरमत दे अंदर गल्लां कीतियां होईयां ने। ਇਹ ਸੀ पंजां तत्तां दे बारे। हुण सब तो पहला जिहड़ा तत्त है वो है आसमान। गुरबाणी दे अंदर आकाश भी आया है, आसमान भी कई बारी शब्द वरत्या है, गगन भी शब्द कई वार वरत्या गया है आसमान की गल आउंदी है।
परमात्मा ने इस देही अंदर 5 तत्त पाए हैं। उन्हां तो पहला तत्त आकाश का तत्त जो पहला तत्त है, गुरबाणी अंदर इसनों कई रूपों में सतगुरां ने वरत्या गया है। आकाश, आसमान, गगन, दसम द्वार, चिंताकश, चित, रूप, आकाश, आकाश वांग इत्यादिक रूपां च वरत्या। प्रमुख तौर दे उत्ते शब्द नूं 2 रूपां विच वरत्या गया है। पहला ब्रह्मंडी स्वरूप दे विच आकाश, दूजा आत्मक आसमान। भाव कि ये जिहड़े जिन्ने भी आकाश दे विच जिथे भी शब्द दे अर्थ होणगे ना, ये अर्थां 2 रूपां च वरते गए ने। पहला ब्रह्मंडी स्वरूप आकाश की गल कीती है, परमात्मा नाल मिलाप की गल। दूसरा आत्मक आसमान दे नाल, आत्मक तौर दे उत्ते परमात्मा दे नाल मिलन की गल आम तौर दे उत्ते इन्हां रूपां दे विच वरते गए ने। हुण जदों असीं इन्हां दी गल आकाश की शुरुआत करते हाँ ते कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। साहिबा ने स्पष्ट किया है कि संसार दे उत्ते कई खाणियां जड़ियां ने, खाणियां तो भाव है यानी कि पैदाइश, कई पैदाइश जिहड़ी है धरती दे उत्ते पैदा हो रही है, कई जमीन दे विच पैदा हो रहे आ, कई आकाश दे विच भाव के दरख्तां दे उत्ते जिवें पंछी घोंसले पा के उत्थे बच्चे पैदा हुंदे ने, उन्हां दी गल कीती है कि आकाश ब्रह्मंड धरती दे वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਕੀਤੇ गए ने। जिवें ਅਸੀਂ ਆਪ जी नाल गल कीती है 4 प्रकार ਦੀ पैदाइश है। इन्हां 4 खाणियां राही करोड़ां जीव उत्पन्न हुंदे ने। बहुत सारे आकाश विच ब्रह्मंड विच हुंदे ने, कई करोड़ां जीव पतालां दे विच पैदा हुंदे ने। ते साहिब गुरबाणी अंदर बचन करदे आपे धरती धौल आकाशं, प्रभु परमात्मा आप ही इन्हां सारियां दा रक्षक आप बन के सारियां नूं पैदाइश कर रहा है। जो गुरुदेव भवन त्रै सूझै, जो गुरुदेव ऊच पद बूझै, जो गुरुदेव तां शीश आकाश, जो गुरुदेव सदा शाबाश। प्रभु परमात्मा तिन्हां भवनां दा मालिक वो आप ही रह करके, वो आप ही सारियां नूं हर थां दे उत्ते संभाल करदा पिया आ। आप ही उन्हां दी पैदाइश करके उन्हां नूं संभालदा पिया है। साहिब गुरबाणी अंदर साहिब वचन करदे ने कि जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया होया है उसनू कदी भी उसनू जेकर मिलना है, कहो कबीर खोजो आसमान, राम समान ना देखो आन। कहण कि जेकर परमात्मा दी खोज करनी है ना ते आसमान दी खोज करो। आसमान तो भाव है अपने अंदर दी सुरती नाल इकमिक हो करके अंदर दी खोज करनी, ज्ञान दी खोज करन दे नाल प्रभु परमात्मा दी खोज होनी है। ज्यों ही जदों परमात्मा दी खोज दे विच लग जावांगे, रूहानियत दे तजर्बे करने शुरू कर देवांगे, आकाश तक जाण दी कोशिश करांगे, सारी दुनिया दी भाल कर चुके हैं, परंतु प्रभु परमात्मा तो बिना परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हो सकती। धरती ऊपर कोटगढ़ केती गई बजाए, जो आसमान न मावई, तिन नक नथ नथा पाए। प्रभु परमात्मा इस धरती उत्ते अनेकां धरती दे किले बनाउण वाले, अपने वड्डे वड्डे ढोल वजाउण वाले आखिरकार इस संसार दे उत्तों चले गए। जिहड़े अपनी ताकत मान इतनी धौण अकड़ा के तुरदे सन, मानो आसमान उन्हां नूं भी निवा नहीं सकता, लेकिन परमात्मा उन्हां दी भी आकड़ भन्न दिंदा है। लेकिन साहिब कहने पंखी होए कै जे भवां, सह आसमानी जाऊं, नदरी किसे न आव, ना किश पिया ना खाओ, पीते री कीमत ना पवै, हो केवड़ आखा नाऊं। कहण तो भाव गुरु पातशाह इत्थे समझाउणा चाहुंदे ने कि प्रभु परमात्मा जिहड़ा कि एक आसमान दी तरह है, बहुत विस्तार है। आसमान दा कोई अंत नहीं पा सकता, परमात्मा दा भी कोई अंत नहीं पा सकता। जिहड़ा इंसान इस संसार दे उत्ते आण के अपने आप नूं बहुत वड्डा अखवाउणा शुरू कर दिंदा है, वो कदी भी परमात्मा दे दर दे उत्तों खुशी हासिल नहीं कर सकता। वो परमात्मा दे दर दे उत्ते जिहड़ा नीवना हो के रह करके अपने जीवन नूं चलाउंदा है,
वो परमात्मा के दर दे उत्ते ही प्रवान हो सकता है। पौन पानी धरती आकाश घर मंदिर हर बनी, विच वरतै नानक आप झूठा क्या गनी। जिवें अगे विचारिया सी, प्रभु परमात्मा ने ये पंजां तत्तां दे द्वारा शरीर बनाउणा कीता है ते इहदे विच आप वो विराजमान है। इस धरती दे विच हवा पानी धरती आकाश सारा कुछ प्रभु परमात्मा ने आप सिरजना करके आप इस दे विच विराजमान हो करके सारे नूं आनंदित कर रहा है। गुरुदेव पातशाह साहिब आखना करने पूजा प्रेम माया परजाल, वेखो ये एको वेखो अवर न पाल, चीने तत् गगन 10 द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। नाम विच जुड़ के माया मोह अपनी जिंदगी नाल साड़ के प्रभु परमात्मा नाल जुड़न दे वास्ते महिमा भरमा पखंडा तो उच्चे उठ करके मन नूं 10वें द्वार दी समाधि ला करके परमात्मा दे नाल जुड़न दी गल जीवन दे विच जदों आवेगी ते फिर परमात्मा नाल जुड़िया जावेगा। हुण जदों असीं आसमान की गल करते हाँ तो दुनियादारी के अंदर साहिब सारी दुनियादारी के अंदर दुनियादारी दी चीज़ां नूं भी आखदे ने कि सारा कुछ घट रहा है। घटंत रूपं घटंत दीपक घटंत रब सद नखत्र गगनन, ये सारा कुछ रूप भी घट रहा, दीप भी घट रहे, सूरज चंद्रमा भी घट रहा, सारा कुछ घट रहा, आकाश भी घट रहा, अपना समा भोग रहे हैं। ये सारा कुछ खत्म होने वाला है, नाशवान है। लेकिन जेकर नाशवान नहीं है तो वह है प्रभु परमात्मा। ते उस परमात्मा दी जिहड़ा शरीर दे अंदर आसमान दिता है, शरीर दे अंदर खोजण दी गल कीती है, वह है परमात्मा नूं खोजण दे वास्ते जीवन दे अंदर समा बतीत करना। गगन अगर एक बूंद न बरख है, नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिदाना। साहिब आखणगे बाबा शरीरक मोह आद नूं रोल के किथे गया है। जो हर प्रभु परमात्मा तेरे नाल टिकिया रहिंदा है, हमेशा तेरे नाल रहन वाले परमात्मा नूं जिहड़ा परमहंस है, ये सब परमहंस परमेश्वर दे नाल जुड़न दे वास्ते अपना जीवन दे अंदर सोचो ते ताकि जीवन दे अंदर तां ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साहिब तां गुरबाणी दे अंदर असल दे विच सूरमा भी उहनूं आखदे ने जिहड़े अपने जीवन दे अंदर विकारां तो बच करके प्रभु परमात्मा दे नाल गगन दमामा बाजियो परे निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। दुनिया दे लोग सूरमे मर्द अखाउण वाले, वड्डे वड्डे महल्लां दे विच दमामे वजाउण वाले, जंग दे मैदान दे विच मुकाबले कराउण वाले, उन्हां नूं सूरमा आखदे ने। लेकिन गुरमत दे अनुसार जिहड़ा विकारां नूं जित लैंदा है, असल दे विच वो सूरमा मन्निया जांदा है। ते इस सूरमे मनण दे वास्ते साहिब गगन गंभीर गगनंतर वासा, गुण गावे सुख सहज निवासा, गया ना आवे आए ना जाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्त्र चीत समाध संगोनी, हर नाम चेत फिर पावे ना जोनी, गुरमत सार ए बिहोनी। प्रभु परमात्मा गगन गोपाल परमात्मा दे नाल जुड़न दे वास्ते अपने जीवन दे अंदर स्थिरता लियानी पवेगी, तां कि परमात्मा दे गुरबाणी दे अंदर एक नहीं अनेकां प्रमाण ऐसे मिलते ने जिन्हां दे राहीं असीं परमात्मा नाल मिलिया जा सकता है। ये आकाश दे बारे विच गुरुदेव पातशाह वख-वख रूपां दे विच सानू बयान करदियां होइयां देखो असीं गल करनी है कि गुरमत दे अनुसार अनेकां चीज़ां जो आकाश की जिहड़ी गल आउंदी है, असीं साइंस दे नाल जेकर तुलना करके भी विचारते हैं तो जो गुरबाणी दे अंदर ते साइंस दे अंदर वो बिल्कुल आपस दे विच सुमेल करदियां होइयां गल्लां साडे सामने स्पष्ट हो के आउंदियां ने। जो आकाश दे विच जो कि सूक्ष्म हुंदा है, स्थूल नहीं हुंदा। गुरु शब्द दे अनेकां वार वरत्या गया। ब्रह्मांड की कहानी समय जन्म तो शुरुआत हुई है। गुरबाणी भी आख रही है कि कई दिनस सब रात रात राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल,
प्रभु परमात्मा ने ये सारिया चीजां बनाइया हुई ने, आप सिरजना की हुई है। परमात्मा सृष्टि रचना तो पहला सुन की जो गल करते हैं तो उसनों साइंस दे विच सुन वैक्यूम की स्थिति की गल आउंदी है। नवा विज्ञान कहता है कि वैक्यूम या सुन दी हिलजुल दे सदका ही जिसनों देश काल का जन्म होया, भाव कि सृष्टि रचना हुई। ते बिग बैंग की थ्योरी जदों अग दे जो कि बहुत वड्डा धमाका होया, सृष्टि रचना हुई, उस तो बाद बिल्कुल हौली हौली गैसां दा सुमेल होया, तो सुमेल हुंदियां होया धरती नूं ठंडक होया, जो सृष्टि रचना इत्यादिक बनी। वो काफी लंबा विषय, वो एक अलग विषय बन जाता है। वो भी जदों असीं उस नूं विचारदे हां ते वो गुरमत दे अनुसार ही वो स्पष्ट हो जाता है। गूथ, डॉक्टर गूथ कहते ने कि इनफ्लैक्शन जो पहला ब्रह्मांड की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था इनफ्लैक्शन दे उपरंत हुई न्यूनतम ऊर्जा अवस्था नालों नीवी सी। इनफ्लैक्शन तो पहला संतुलन आरजी से एक किस्म का फेज परिवर्तन से दोहां फेजां दे न्यूनतम ऊर्जा दे अंतर विच ब्रह्मांड की लेटर्ट हीट से इन्हां तो ऊर्जा पासे जिम्मेवार हुई पसारे तो जो कि नव जन्मे ब्रह्मांड की रोशनी तेज रूप के अंदर तेज रफ्तार दे नाल हुई। इत्यादिक स्पेस ब्रह्मांड तो रोशनी लैके सारे ब्रह्मांड के अंदर फैलाउंदा है। ये जो साइंस का विषय एक काफी वड्डा चैप्टर है, उहदे विच सारा कुछ आसमान के बारे लिखिया होया है, लेकिन असीं डॉक्टर कुलवंत सिंह धीर होना ने इस दे बारे काफी कुछ लिखिया है, वो भी इस चीज दे विच ऐड कीता है। लेकिन असीं जिहड़ी गल करनी है वो है प्रभु परमात्मा जदों आकाश दे विच परमात्मा ने सृष्टि दी आसमान दे रूप दे अंदर रची ते उस समय सब तो पहला साडे शरीर दे जिवें आसमान है उसे तरीके दे नाल साडे जीवन दे अंदर आसमान दी उचाई गहराई जां अध्यात्मक मंडल जिवें आसमान दी कोई अथाह नहीं पाई जा सकती, बस उसे तरीके दे नाल साडे हिरदे दे अंदर एक आसमान है, साडे जीवन दे अंदर एक आसमान है, वो है अध्यात्मक मंडल दा। अध्यात्मक मंडल नूं कोई थां नहीं पाई जा सकती। जिन्ना भी उस दे विच असीं गहराई दे विच जावांगे, खोजण दे वल जावांगे, उन्ने उहदे विच होर गूढ़त ज्ञान, होर सोझी, होर उहदे अंदर विस्तार हुंदा जावेगा। जिवें खोज करदे करदे चंद्रमा तो मंगल ग्रह तक पहुंचे, बस उसे तरह जिन्हें जिथे दी पहुंचे दी अवस्था उन्हें उथों दी गल कह देना कीती। हुण जेकर गुरबाणी के अनुसार असीं जिन्ने क अगे तुरांगे उन्ना साडी जीवन दे अंदर वो अध्यात्मक मंडल दा विस्तार हुंदा जावेगा। हुण उस दा जिहड़ा पहला रूप है आसमान दा, हुण आसमान दा सानूं पता कित्थों लगेगा भी साडे अंदर आसमान जिहड़ा बहुत वड्डा आ, उहनूं परखण जां उहदे ताईं पहुंचण दा की रस्ता है। आसमान का जिहड़ा पहला गुण है वो है शब्द, शब्द धुनी सुर। आसमान नूं जदों असीं गल करदे हां ते गुरु पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने यह सवाल सिद्धा ने पुछ कीती। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सिद्ध गोश्त बाणी दे अंदर इन्हां दा जिक्र कीता कि जीवन का मूल की है, किहड़ी सिक्ख्या लैण दा मनुख दा जन्म समा सफल हो सकता है, कि तुहाडा गुरु केड़ा है, तुसीं केड़ी गल करदे हो, किस तरीके दे नाल निर्लेप रहा जा सकता है। सवाल जवाब कीते गुरु नानक साहिब ने। पहला सवाल किया सिद्धा ने, कवन मूल कवन मत वेला, कवन गुरु किसका तू चेला। क्या बाबा नानक तेरा गुरु केड़ा है, केड़े गुरु दा तू चेला है, किस कोलों तेनू ये ज्ञान ये सोझी ये सारा कुछ प्राप्त होया है। कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। ए बालक ए धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बालक, क्योंकि उन्होंने उम्र बहुत ज्यादा से, उन्होंने उम्र के सामने गुरु नानक साहिब जी एज दे विच काफी छोटे सन, लेकिन ज्ञान दे विच उन्हां को बहुत ज्यादा ज्ञान से। तो साहिबा ने आख्या
इस कथा का देहो विचार भवजल शब्द लंघावन पार। कि सानू ये दस, जेकर तैनू अध्यात्मक मंडल की सूझी है ते परमात्मा दे दर दे उत्ते भव सागर दे विचों किहड़े तरीके दे नाल पार होया जा सकदा है। ते गुरु नानक साहब ने जिस सवाल तरीके नाल उन्होंने सिद्धा ने कीते सन, उसे तरीके नाल जवाब दिते। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, कहते मेरी जिहड़ी आरंभता हुई है ना, वो पवन तो हुई है। जिहड़ी असीं आकाश की गल कीती है, हुणे आकाश की गल, पवन आरंभ साडा जिहड़ा आरंभता हुई है आकाश तो हुई है। सतगुर मत वेला, अरे सतगुरु सच्चा सतगुरु प्रभु परमात्मा जिहड़ा है ना, उन्हें मत दिती है, ज्ञान दिता, बुद्ध दिती है। असीं जिहड़े शब्द की शुरुआत की है, शब्द दी दिती है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मेरा जिहड़ा गुरु है वो शब्द है, उहदे नाल जुड़ी हुई जिहड़ी सुरती है वो मेरा उहदे नाल जुड़ी हुई सुरती है, वो धुनी जिहड़ी है वो मेरा चेला है। अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख होमै अगन निवारी। साहब कहण लगे जिहड़ी अकथ दी कथा है, जेकर तुसीं आखदे हो ना, अकथ दी कथा बहुत ही निराली है, उहदी वखरी है, उहनूं कोई बयान नहीं कर सकदा। नानक जुग जुग गुरु गोपाला, इंसान प्रभु परमात्मा जुगां जुगांतरां तो बार बार हर जीव दे विच पैदा हो रहा है। हर थां दे उत्ते हरेक जीव दे विच परमात्मा आप वसदा पिया है, आप सारियां दे विच रहिंदा होया हमेशा दे लई विचारदा है। एक शब्द जित कथा विचारी, सिर्फ तो सिर्फ एक शब्द दे नाल ही प्रभु परमात्मा जुड़िया जा सकता है। गुरमुख होमै अगन निवारी, गुरमुखां दी संगत दे द्वारा ही हौमे नूं असीं खत्म कर सकते हैं। शब्द दे राही दुत्र सागर तरिया जा सकता है। ये शब्द एक रस दे नाल मिलिया जा सकता है। शब्द दे द्वारा ही असीं प्रभु परमात्मा दे नाल मिल सकते हैं। जिस मनुख उत्ते प्रभु मेहर दी नजर करता है, वो हिरदे विच ये शब्द वसदा है। मनुख हिरदे विचों भटकना दूर कर लैंदा है, उसका तन मन बाणी नाल पवित्र हो जाता है। प्रभु परमात्मा नाम ते उहदे मन दे विच वसाई रखदा है। सतगुरु दी शब्द दी राही संसार सागर तो तरिया जा सकता है। जो तर जाता है वो लोक परलोक उसदे सुहेले हो जाते हैं। जो मनुख शब्द नूं पहचान लैंदा है, शब्द नाल डूंगी सांझ पा लैंदा है, वो माया प्रभाव नहीं पाउंदी ते अपने आप नूं वखरे वर्ण चिन्ह बना के उस अपने आप तेर मेर दूर कर दिंदी है। साहिब गुरु नानक साहिब जी महाराज जी नूं गुरु पातशाह समझाउंदियां होइयां आखण लगे, शो शब्द को निरंतर वास अलखम, जह देखा तै सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला धर सोई। जिहड़ा शब्द दा निरंतर वास साडे हिरदे दे विच चलदा पिया है ना, वो जिथे भी असीं वेखांगे परमात्मा सारे जगह दे उत्ते उथे परमात्मा दिखाई देवेगा। पवन का वासा सुन निवासा, मतलब परमात्मा दा जिहड़ा वासा है ना, वो साडे हिरदियां दे अंदर भी सुन हो के वासा वसिया पिया है। साडे सारियां दे हिरदियां दे अंदर परमात्मा है, पर वो सुन हो के अंदर बैठा होया है। वो बाहरी तौर दे उत्ते प्रगट हो के किसी नूं नहीं दिखा रहा, लेकिन वो सुन हो के सारियां दे अंदर विचर रहा है, देख रहा है, वो ज्ञान दे रहा, सोच दे रहा, समझा रहा, पढ़ रहा, देख रहा, लेकिन वो सुन हो के साडे पिछे बैठा होया है। वो देखदा है, जां इवें कह लईए कि परमात्मा ने सानू सारियां बख्शिशां करके सानू इक्को जे बना के संसार दे उत्ते भेजिया। हुण साडी जिम्मेवारी ला दित्ती है कि तुसीं की करना है, ये तुहाडी जिम्मेवारी है, तुसीं की कर रहे हो। असीं जिवें बच्चे नूं तैयार करके स्कूल च भेज दिंदे आ, बच्चा तैयार होकर स्कूल चला जाता है। हुण स्कूल दे विच जाके वो पढ़े जां ना पढ़े, जो हुण उसे क्लास दे विच एक बच्चा जिहड़ा आ वो बिल्कुल फर्स्ट आ रहा है, ते एक बच्चा जिहड़ा आ वो फेल भी हो रहा है। ते हुण इहदे विच मां प्यो दी कोई गलती नहीं है। उसे तरीके नाल परमात्मा ने सानू इस धरती दे उत्ते पास होने वास्ते भेजिया, सारा कुछ दिता होया है, सारा
ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਮੈਂ ਵਸੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਤ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਵਰਨ ਚਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ 10 ਉਂਗਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗਲ ਵਾਈ ਔਧੂ ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਔਗਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਤ ਬਿਰੋਲੇ, ਚੀਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਚੁਕ ਅਹੰਕਾਰੋ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲਗੋ ਪਿਆਰੋ। ਸੁਖਮਨਾ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਰ ਸਾਚਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਲਿਓ, ਇਹ 10 ਉਂਗਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਾ ਜਿਉ ਪਵਨ ਕਥੀ ਹਲੇ, ਪਵਨ ਕਾ ਕਹਾਂ ਰਸ ਖਾਈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਵਨ ਔਧੂ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਔਧੂ, ਹਉਮੈ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜੋਗੀਓ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, देखो ये जिहड़े सिद्ध लोग सन कोई आम लोग नहीं सन, ये बहुत विद्वान और सारे फिलोसफिकल, सारे जिन्ने भी सवाल पूछे ने अध्यात्मक मंडल दे, संसारिक सवाल कोई भी उन्होंने नहीं पूछा। जो सवाल जवाब होंगे ने गुरु नानक साहब दे, दुनियादारी कोई सवाल नहीं, कोई ये नहीं किथे जाना किथे आना, धन किदा जायदाद किदा, कुछ नहीं, सिर्फ अध्यात्मक मंडल दे। तो सवाल जो वेखो यह हमारा निश्चल हृदय वसीले गुरमुख गुरु नानक देव जी महाराज ਨੂੰ सवाल करते हैं कि मस्त होया हाथी जड़ा है ये किथे वासा करता है, जो साडा मन है वो किथे वासा करता है, प्राण किथे वसदे ने। हे जोगी, हे बाबा नानक, तू सानू दस कि तेरा मत दे अनुसार साडे मना दी भटकना किवें मुक सकदी। देखो तीन सवाल ने, जिहड़ा मन जिहड़ा है मस्ते हुए हाथी वर्गा है, जिधरों मर्जी भजदा है, लेकिन ये रोकिया किदां जा सकता है। देखो असी गल करते हैं कबू जीड़ा उब चढ़ता है, कबू जाए प्याले लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंटा भाले, चारे पासे भज्जा फिरदा, कबू जी उब चढ़ता है, कदी किते भजदा कदी किते भजदा, एक थां टिकदा ही नहीं मन। तो कहने लगे ये मन है हाथी वर्गा, मन जिहड़ा मस्तिया होया हाथी वर्गा, वो भजदा फिरदा है, वो किवें टिकाया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि जिहड़ा पुराना प्राण जिहड़े साडे ने श्वास जिन्हां नूं असीं आख दिंदे आ, इन्हां दा वासा कित्थे हुंदा है, श्वास कित्थे जाके टिकदे आ, कित्थे जाके रुक सकदे आ, जां श्वास किवें असीं अपने जीवन दे अंदर इन्हां नूं असीं रोक सकदे आ जां किवें इन्हां नूं चला सकदे आ। प्राण कित्थों आउंदे ने कित्थे जांदे ने किसे नूं पता नहीं है। तीसरा सवाल उन्होंने कीता है कि ये जिहड़ी भटकना है तुहाडे मत अनुसार साडे मन की भटकना किवें मुक सकदी है। ते गुरु नानक साहब उन्हां सवालों के जवाब दिंदे होए वचन कहण लगे, यह मन निश्चल हिरदे वसीले। मन कित्थे वसदा? हिरदे दे विच। मन शरीर दे चार हिस्से ने, पहला हैगा शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा मन और चौथा हिरदा। मन जिहड़ा आ गुरु नानक साहब कहण लगे हिरदे दे विच वसदा है। हिरदा इवें कह लईए कि एक साडे जीवन दे शरीर दे अंदर एक बर्तन है, उहदे विच मन है। बर्तन दे विच की है कि विकल्प संकल्प जिहो जे साडे ज्ञान साडे जिन्हां असीं नेत्रां नाल जो देखदे आ, कंनां नाल जो सुणदे आ, जो असीं जीवन दे अंदर वाच कर रहे हैं वो साडे हिरदे च पै रिहा। जे चंगा पै रिहा जां माड़ा पै रिहा वो हिरदे च पै रिहा। जिहो जिहा साडे हिरदे दे विच वस्त पै रही है उहो जिहा साडा मन हो रहा है। मन उधर नूं तुरदा है जिधर नूं जो फिर मन साडे शरीर नूं तोरदा है कि किधर नूं तुरना। जे धार्मिक वल तुरना है धार्मिक पासे चल, जे राजनीतिक तुरना राजनीतिक पासे तुर, जे तू संसारिक पासे तुरना संसारिक पासे तुर। ये फिर मन तोरदा है। ते साहिब स्पष्ट किया मन, यह मन निश्चल हिरदे वसीले। मन जिहड़ा हिरदे दे विच वसदा है। एक बर्तन दे रूप च कह लईए कि जिवें असीं बचन पढ़दे भांडा धोए बैस धूप दिओ तो दूध दे को जाए। ये भांडा है साडा हिरदा, एक भांडे दे रूप च आ ते उहदे विच मन आ। मन हिरदे दे उहदे विच टिकिया होया है। गुरमुख मूल पछाण रहे। जिहड़े गुरमुख जाने ये मूल डूंघे तौर दे उत्ते इस नूं पछाण लैंदे ने कि वाकई साडे हिरदे दे विच मन टिकिया होया है। दूजी गल नाभ पवन घर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लहे। उन्हां दे श्वास कित्थे जाके टिकदे ने? नाभ पवन, नाभि दे विच हवा, नाभि तो शुरुआत हुंदी है जिन्हों असीं धुनी भी आख दिंदे आ। नाद पवन घर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लहे। अरे जेकर इसनूं गुरमुख लोग खोजण दी कोशिश करदे ने, जदों असीं परमात्मा नूं खोजण दे वास्ते जदों असीं एकाग्र हो करके एक परमात्मा नूं ध्यान दी गल करदे आ ते जिहड़े गुरमुख जन खोजदे ने उन्हां नूं पता लग जांदा है कि श्वासां दी जिहड़े धुनी तो ही यानी कि शुरुआत हुंदी है। हुण जेकर असीं साइंस के आधार दे उत्ते रखदे आ जां दुनियादारी दे तौर ते जिस समय बच्चा पैदाइश हुंदी है ते धुनी तो नाड़ूआ कट्टिया जांदा है। सारी माता दे गर्भ दे अंदर जदों बच्चा रहिंदा है सारा उस धुनी दे राहीं ही नाड़ूए दे राहीं ही
जिन्ना भी भोजन जो भी आहार जिहड़ा साडे शरीर नूं जो खून मिल रहा आ सारा उसे दे राही मिल रहा है। जिन्ने स्वास मिल रहे आ उसे नाड़ूए दे राही ही साडे जीवन दे विच आउंदे ने। साडे जीवन नूं ओ चलाउण वाले ओही है। जिस समय साडा जन्म हुंदा है वो नाड़ूआ कट दिता जाता है ते वो नाड़ूआ दे वो फिर सारे अंग साडे जदों नेत्र खुल जाते ने, अखां दिखना शुरू हो जाता है, मूँह खुलता है, नक खुलता है, कन खुलते ने, सुनना बोलना हवा आनी शुरू हो जाती, शरीर के अंदर असी क्रिया करनी शुरू कर देंगे हैं। लेकिन उस तो पहला जिन्नी क्रिया है वो सारा उस नाड़ूए दे राही हुंदा है। साहिब गुरु नानक साहब ने स्पष्ट किया नाभ पवन कर आसन बैसे। नाभ दे राही ही जेकर असी समाधि ला के एक चौंकड़ा मार के बैठते हैं तो सानू जो श्वास लैने आ ते नाभि तो सानू पता लगता भी इत्थों ही सारे श्वास शुरुआत असीं इत्थों ही खिंचते हैं। गुरमुख खोजत तत लहे, जिहड़े गुरमुख खोज लैंदे ने उन्हां नूं इह गल दी समझ आ जाती है। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रिभुवन जोत सो शब्द लहे। अरे जिहड़े शब्द की गल करते हैं ना, जिहड़ा प्रभु परमात्मा शब्द कित्थे रहिंदा आ, वो साहिब कहण लगे आ शब्द निरंतर निज कर आछै। जिहड़े भटकना मुकाउण दी जिहड़ा सवाल सी ना तीजा कि तुहाडे अनुसार मत अनुसार भटकना किवें मन दी मुक सकदी है। शब्द निरंतर निज घर आछै। जो हिरदे घर दे विच शब्द दी सोझी हो जाऊगी ना ते भटकना मुक्कणगियां। साडा मन भटकदा आ इदां नहीं इदां हो सकदा, इदां नहीं इदां। जो शब्द दे हरेक सवाल का जवाब गुरबाणी दे विचों सानूं मिलना शुरू हो जाऊगा। हरेक सवाल साडे जीवन दे उतरा चढ़ा, सारे जीवन दे दुख सुख संकल्प विकल्प, उन्हां दे कई सवाल, कई बार दुख आउंदे ने सुख आउंदे ने, उन्हां दे बारे जिन्नी भी भटकना है जदों गुरबाणी दे प्रति शब्द पुछांगे, गुरबाणी नूं पढ़ांगे, उहदे विच सारे सवालां दे जवाब मिलने शुरू हो जाणगे, फिर साडा मन टिकना शुरू हो जाएगा। त्रिभुवन जोत सो शब्द लहै। सब तिन्ना भवनां दी जिहड़ी जोत है ना वो शब्द दे द्वारा ही प्राप्त। तिन्ना भवनां दा जिहड़ा ज्ञान है वो सानू परमात्मा दा जिहड़ा ज्ञान है वो शब्द दे द्वारा ही परमात्मा मिलना है। ते उहदे वास्ते की है ना, जेता शब्द सुरत धुन तेती, जेती जेता रूप काया तेरी, तू आपे रचना रसना आपे बसना अवरना दूजा कहो री माई। साहिब बचन कहने जिन्ने भी शब्द सुरत जिहड़ी है प्रभु परमात्मा की बख्शिश है, वो परमात्मा दे नाल ही जुड़िया जाया ही ये सारियां बख्शिशां इस शरीर दे विच आ सकणियां ने। असीं इस संसार दे अंदर देही विच जिन्ना कुछ भी बोलते हैं, जिन्ना कुछ भी सुनते हैं, जिन्ना कुछ भी सुनने की क्रिया है, ये सारी जीव आत्मा दे सदका ही है। यह जिन्ना कुछ भी देखते हाँ या दिखाते हाँ, ये सारा शरीर परमात्मा का रचिया होया है। यह जीव व्यापक प्रभु परमात्मा असी जो कि शब्द दे जो असी अर्थ पढ़ते हैं, धुन आवाज सुर लफज गुफ्तगू गुर पर उपदेश ब्रह्म करता धर्म मजहब शब्द दा मकसद, इस शब्द के वख-वख रूपां च अर्थ भी आउंदे ने। गुरु दे शब्द दे राही हर नाम सुनिया जा सकता है। शब्द राही सारे जीव राह नूं समझाया जा सकता है। जिहड़ा मनुख गुर शब्द दे विच चित जोड़ लैंदा है वो सदा थिर सुरती प्रभु परमात्मा नाल जोड़ी रखदा है। शब्द दी बरकत नाल ही अंदरों होमे मुकाई जा सकती है। जिहड़ा शब्द जिहड़ा मनुख गुरु शब्द का आसरा लैंदा है वो सदा प्रभु परमात्मा दे चरणां दा आनंद माणदा है। जगत विच बरकतां दे नाल शोभा मिलदी है। हर नाम तो बिना मिली हुई शोभा असल विच शोभा नहीं हुंदी। माया प्रताप नाल मिली हुई शोभा 4 दिनां दी रहिंदी है। इस दे नास हुंदियां भी चिर नहीं लगदा। जिन्हां मनुखां दे हर नाम भुला दिंदे ने, जो आत्मक मौत सहेड़ लैंदे ने, आत्मक मौते मर रहिंदे ने, जिहड़े परमात्मा दे नाम नूं अपने जीवन दे विच वो नहीं ध्याउंदे। शब्द सुनिए शब्द बूझिए सच रहे लिवलाए, शब्दे होमे मारिए सच्चे महल सुख पाए। इस जग में शोभा नाम की
बिन नामै शोभ न होए। यह माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलम न होए। जिन्नी नाम विसारिया से मुए, मर जाहे हर रस सदा न बिस्टा, सदा न साध न आयो। बिस्टा माहे समाए, एक आप आपे बख्श मिलायन, अंदर नामे लाए। सच कमाए सच रहे, सच्चे सच समाए। एक प्रभु परमात्मा दे नाल बिन शब्द सुनिया ना बोलिया, जग बोला अन्ना फरमाए। बिन नामे दुख बिन नामे दुख पाई सी, नाम मिले तिसे रजाए। और साहिबा ने अखीर स्पष्ट किया है कि नाम तो बगैर सारा शब्द तो बगैर ना तो बोलिया जा सकता है, ना सुनिया जा सकता है, ना देखिया जा सकता है। सारा जगत नाम तो बगैर शब्द तो बगैर भरमां दे विच पिया होया आ। बिन नाम है दुख दुख पाई सी, नाम मिले तिसे रजाए। शब्द तो नाम मिलना है, ते नाम तो बगैर दुख ही मिलने ने। जिन बाणी स्यों चित लाया, से जन निर्मल प्रवाण। नानक नाम तिना कदे ना विसरै, से दर सच्चे जान। नाम बाणी प्रभु परमात्मा ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਬਦੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜੋਗ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਤਿੰਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਓ, ਤਿੰਨ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਮੁਖ ਨਾਉ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋ, ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈ ਰਹਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੇਂ ਤਿੰਨ ਬਲ ਜਾਉ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਮੁਖ ਨਾਉ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੋ ਸਾਚ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਇਤਿਆਦਿ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਕੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ
ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ, ਸੁਖ ਆਏਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣੈ, ਸਾਚ ਮਹਲ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਚ ਮਹਲ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੀਐ, ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ, ਧਿਆਇਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਤ ਸਰਵੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੁਖ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੁੱਬੀ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਬਾਈ ਗਏ ਕਿ ਲਾਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।